Hello students, welcome to your channel Sepish English Classes. I hope you all are good. And in today's video lecture, I have picked up this book Reverie, which is from ISC board for the students of 11th as well as 12th standard. And the poem that I have taken up today is Dover Beach by Matthew Arnold. Before I go ahead to explain you this poem, let me tell you that this poem is regarded as a difficult one by the students most often. But I promise you that by the end of this lecture, you will have understood every single word and every single line of this poem. It is a very beautiful and a very interesting poem. But so as to understand it in a better way, you need to know some facts and some background of the poem. So before I dive into the text of this poem, I would like to tell you the background of the poem and also some things which are related to the poet. So this poet Matthew Arnold was a Victorian poet. Now, who is a Victorian poet? Obviously, Victorian poet is the one who belongs to the Victorian era. That means Matthew Arnold belonged to the Victorian era, and he must have witnessed the characteristics of the Victorian era. So, what are the characteristics of Victorian era? The most important characteristic of Victorian era is the beginning of great decline in faith of God as a result of advancement in the field of science and technology. Actually, let me tell you that this Victorian era was preceded by Romantic era. You know, literature of England has been divided into various periods. However, I will not go into the details of those periods because it is not for your syllabus, but so that it becomes more convenient for you to understand this poem in a better way, I would like to introduce at least two periods to you. Like I'm telling you about Victorian era, which is important for you to understand. So you also try to understand the Romantic era, which was preceded by the Victorian era. Or you can say that Romantic era was followed by the Victorian era. So in the Romantic era, which was around the end of the 18th century, the poets used to talk about the beauty of nature. They used to discuss the nature as a guide, as a mentor in their poetry. And also, their poetry would reflect their great faith in God. But as the Romantic era ended and it was followed by the Victorian era, which was the 19th century, as you know, that 19th century manifested a great change in the world. So, since Victorian era was a 19th century, it showed that great change in the form of industrial revolution and advancement in the field of science and technology and impacted the faith of people. You know, because people had started thinking scientifically as a result of that advancement in the field of science and technology, people had learned so much of science by that time that they had started thinking in a rational way, in a scientific manner, instead of believing that every happening was because of God. It was all, because of God. Although earlier they used to think that God is driving the entire universe. So, whatever is happening, it is all because God wants it to happen. This is what they used to think. And see, since they used to think that God is driving the entire universe and everything happening because of the will of God, they also used to try their best to prevent themselves from committing the wrong deeds or the sins or the crimes. And they used to fear, they used to have fear for God. They used to feel scared of the punishment that might be given to them by God if they would do something which is not right, which is immoral, which is corrupt, which is against the humanity. They would not do that. Why? Because they had fear for God. They used to feel scared of the punishment that might be given to them by God. But as this Victorian era showed the characteristics of advancement in the field of science and technology,
and great decline in faith began. People started thinking in a rational way, and they declined their faith in God, and then there was no fear for God as well. And as that fear for God reduced and it began to fade away, they felt, you know, very free to commit any kind of a sin, any immoral activity, and they did not feel even once that it was wrong. They would not even think once before going against the rules of humanity. And as you can see, in the modern era, happening, these things. So since 19th century till today, which is the modern era, so Victorian era had begun. You can say Victorian era was a kind of a setting for the modern era. It had begun, it had created that scene, right? So so since then, if you see, then in the modern era, since then, you can say that only the development has taken place. So that great revolution in the society had taken place in the 19th century or the Victorian era, and since then till today in the modern era, we can see the changes, or you can say the development in that change. It is getting more and more advanced. That change is getting more and more advanced. But that change took place in the 19th century. And that change, that which impacted entire England and the world, that was great decline in faith of God. And especially when we are talking about England, because till Romantic era, England had great faith in God. But as that era came to an end, because Romantic era was about the end of the 18th century, and as that era ended, and especially the poets who had witnessed the transition from Romantic era to Victorian era, they all, suffered a lot, seeing how badly, faith had been declining. Faith in God had been declining, and very easily, allowing people to get indulged in any kind of a sin or immoral activities very easily. So it had impacted them. And Matthew Arnold and our another poet in your syllabus itself, that is Thomas Hardy, who has written your first poem in the syllabus, The Darkling Thrush. These are the perfect examples of those poets who were the witness in Victorian era, how that change had taken place and how decline in faith of God had impacted the society in a negative way. They could find that there was a hidden human misery in this change, right? So let us see this poem now. And before I go ahead, again, I need to tell you something really interesting. And it is that Matthew Arnold wrote this poem in 1851. However, this poem was first published in 1867, but it was written by Matthew Arnold in 1851 when he was on a trip for honeymoon with his wife right after his marriage in 1851. So you must be thinking now that if Matthew Arnold was on his honeymoon trip in 1851 along with his wife when he wrote this poem, then this poem should be the content of happiness, love, and celebration. But no, this poem is rather telling you about human misery, about the problems in the world, about the human troubles and all. Just because Matthew Arnold was so much under the influence of that change, which he was not able to bear, which he was not able to accept, and which was impacting him so much that he was, thinking in this way, that he could see that this is the beginning of human trouble. No, उनके लिए क्या है कि उनको लग रहा है कि अच्छा तो शुरुआत हो गई है, अब गॉड के लिए जो फेथ था वो ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब कि ये एक बहुत बुरे दौर की शुरुआत है.
एक करप्शन की शुरुआत है, इमोरल एक्टिविटीज की शुरुआत है. एंड इफ आई से दैट दीज पोएट्स वर राइट इन देयर पर्सपेक्टिव्स, देन इट विल नॉट बी रॉन्ग. ये गलत नहीं होगा कि ये पोएट्स इनके पर्सपेक्टिव सही थे. बिकॉज यू विटनेस द टुडेज वर्ल्ड, दिस मॉडर्न, इस मॉडर्न एरा में क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं जिस बात का इनको डर था. इमोरल एक्टिविटीज़, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट चीज़ें और करप्शन, मटीरियलिज्म. पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट है. पैसे के ऊपर कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे कुछ भी हो. पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं, इंसानियत के अगेंस्ट जा सकते हैं. ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के दिलों में अब डर नहीं है, वो वाला डर जो गॉड के लिए हुआ करता था एक ज़माने में, जो एक ग्रेट फेथ था. तो ये वजह है. इसकी वजह से मैथ्यू आर्नल्ड ने अपने हनीमून ट्रिप पर भी कुछ ऐसा लिखा है इस पोएम डोवर बीच के अंदर, जो डिफरेंट है उससे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पोएट को अपने हनीमून पर लिखना चाहिए. सो डोवर बीच आप समझते हैं कि क्या है. एक्चुअली डोवर बीच किसी पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं है, लेकिन डोवर एक तरह का स्ट्रेट है, STRAIT. और स्ट्रेट कहते हैं एक थोड़ा सा नैरो पैसेज ऑफ वाटर को, जो कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है दो लार्ज वाटर बॉडीज़ को. मतलब एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर जो कि सोर्स ऑफ कनेक्शन बनता है बिटवीन टू ओशियंस और टू लार्ज सीज यू कैन से, और टू लार्ज वाटर बॉडीज़. तो इसी तरह का एक स्ट्रेट है, राइट. एंड इसको आप कह सकते हो स्ट्रेट ऑफ डोवर. It is an English channel you can say, because it is between England and France. ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है. और पोएट इस वक्त इंग्लैंड के कोस्ट पर है, एकदम किनारे पर, और इसीलिए उनको ये इंग्लिश चैनल दिख रहा है. और आप कह सकते हो कि वो देख पा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर को, और इसका मतलब कि उनको एक सी दिख रही है, राइट. वो एक सी को देख पा रहे हैं और वो खड़े हुए हैं कोस्ट पर, इंग्लैंड के कोस्ट पर, और वो एक सी को विटनेस कर रहे हैं, राइट. यहाँ तक हमें समझना है. और अब हमें ये जानना है कि जब वो सी को वो विटनेस करते हैं, देखते हैं उस सी को, तो उन्हें अचानक से ख्याल आता है सोफोक्लीस का. It is very important to understand it in this manner, then only you will be able to understand this poem well. सोफोक्लीस का ख्याल आता है. सोफोक्लीस एक एंशियंट ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे. तो ये एंशियंट ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे. लेट मी टेल यू, बहुत पुराने. ये एंशियंट का मतलब BC के टाइम के हैं ये. और ये ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे और काफ़ी ट्रेजेडीज़ इन्होंने लिखा था, और आज भी इनको याद किया जाता है इनकी ट्रेजेडीज़ के लिए. तो बेसिकली सोफोक्लीस was an ancient Greek dramatist who had written a number of tragic plays or tragedies you can say, and he is known for them, is still known for them. तो सोफोक्लीस ने एक बार वो खड़े हुए थे एजियन सी पे. अब एजियन सी क्या है? एजियन सी कौन सी सी है? एजियन सी इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी एंड इट इज बिटवीन ग्रीस एंड टर्की, राइट. ये ग्रीस और टर्की के बीच में है, मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है एजियन सी. वहाँ पर सोफोक्लीस एक बार खड़े हुए थे, और वो जब लहरों को देख रहे थे आकर के टकराते हुए बीच पर, बीच मतलब जो किनारा है समुद्र का, जहाँ पर ज़मीन है, तो जब ज़मीन से टकराती हैं लहरें, उसको वो देख रहे थे. तो एक तरह का साउंड निकल रहा था लहरों के टकराने से, और उस साउंड में उनको रिफ्लेक्ट हुई ह्यूमन मिजरी, मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स और ह्यूमैनिटी. उनको ऐसा लगा जैसे ये जो साउंड है लहरों के टकराने का, ये इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स, ये साउंड ह्यूमन मिजरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ह्यूमन प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है. हाउएवर उस टाइम का जो एक एरा था वो बहुत पीछे का एरा है, लेकिन उन्होंने कुछ फील किया, कुछ महसूस किया उस साउंड से, जिससे कि उनको वो साउंड ह्यूमन मिजरी का साउंड लगा. वो चीज़ रिफ्लेक्ट हुई उस साउंड से उनको उस टाइम पर. या तो उन्होंने फ्यूचर का कुछ सोचा,
इट इज़ नॉट क्लियर टू अस। बट वो साउंड उन्होंने किससे रिलेट किया? ह्यूमन मिजरी से। उनको ऐसा लगा जैसे कि इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इस वक्त जब मैथ्यू आर्नल्ड खड़े हुए हैं इंग्लैंड की कोस्ट पे और वहाँ से विटनेस कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर को, राइट, या फिर आप कह सकते हो इंग्लिश चैनल को, या फिर उस सी को जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। इंग्लिश चैनल जिसको आप कह सकते हो, एक्चुअली ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है, एंड इट इज़ बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। और उस सी को जब वो देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि कैसे उस सी की लहरें आकर के टकरा रही हैं बीच से, तो लहरों से एक साउंड निकल रहा है, तो उनको अचानक से सोफोक्लीस का ख्याल आ गया। और जब सोफोक्लीस का ख्याल आया, उनकी इस बात का ख्याल आया जब उन्होंने लहरों के टकराने को ह्यूमन मिजरी से कोरिलेट किया था, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं उन लहरों का टकराना बीच पर ह्यूमन मिजरी का साउंड लगने लगा, ड्यू टू द रेफरेंस ऑफ सोफोक्लीस विच ही हैड टेकन। तो क्योंकि यहाँ पर सोफोक्लीस का रेफरेंस लिया था पोएट ने इस चीज़ को रिलेट करने के लिए, ह्यूमन मिजरी के साउंड को रिलेट करने के लिए लहरों के साउंड से, इसलिए ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम कहेंगे एल्यूशन। और इस चीज़ के बारे में सेकेंड स्टैंजा में कहा गया है, एज यू कैन सी सोफोक्लीस लॉन्ग अगो करके लिखा है। बट आई टोल्ड यू बिफोर हैंड इट सेल्फ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, कि क्यों वो जब खड़े हुए हैं इंग्लैंड के, अच्छा वो खड़े कहाँ हैं एग्जैक्टली? वो एक होटल के रूम में हैं और विंडो पे खड़े हैं, और क्योंकि वो इंग्लैंड के कोस्टल एरिया में है एकदम, इसलिए उस होटल रूम के विंडो से ही उनको वो इंग्लिश चैनल दिख रहा है। और वो अपनी वाइफ को भी बुलाते हैं और और उससे कहते हैं कि आ जाओ और आके खड़े हो जाओ विंडो पे और मेरे साथ देखो बाहर की का ये जो सीन है। और फिर जब वो देखते हैं सी की लहरों को टकराते हुए, तो उनको सोफोक्लीस की थॉट याद आ जाती है और उनको भी सेम फीलिंग आती है उन लहरों के बारे में, और इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच एल्यूशन है, राइट। तो अब जब इनको ख्याल आता है सोफोक्लीस की थॉट का, और इनको भी वो लहरों का टकराना जो है उसका साउंड जो है वो ह्यूमन मिजरी या ह्यूमन प्रॉब्लम्स का साउंड लगता है, तो इनके टाइम की ह्यूमन प्रॉब्लम क्या है? इनके टाइम की तो सबसे बड़ी ह्यूमन प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन बीइंग्स हैड स्टार्टेड शोइंग अ ग्रेट डिक्लाइन इन फेथ ऑफ गॉड, and according to Matthew Arnold it was a beginning of many other problems down the line. उनको लगा ये तो शुरुआत है, ये तो तुमने अपने लिए एक बुरा दौर क्रिएट कर दिया, गॉड में फेथ को कम करके यू हैव बिगन दैट एरा विच इज गोना गिव यू a lot of problems, a lot of miseries. So now we will see this poem. Actually, I'm really sorry for this inconvenience. I'm not well enough yet, but I wanted to make this lecture for you since I was not able to make, and it was getting delayed again and again. So I'm making it. Please cooperate with me. The sea is calm tonight. The poet is saying, the sea is calm tonight. The tide is full. The moon lies fair upon the straits. On the French coast the light gleams and is gone. Okay. The sea is calm tonight. इसके बाद फुल स्टॉप है, लेकिन उसके बाद जब लाइन स्टार्ट हुई है तो फुल स्टॉप बहुत आगे जा कर के है कई लाइन्स के बाद। और आप देखोगे कि यहाँ पर जो एक बात है, जो एक स्टेटमेंट है, वो एक लाइन में कंप्लीट नहीं हो रहा है, बल्कि वो कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट लाइन्स में। इस फिगर ऑफ स्पीच को, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जब एक बात या एक स्टेटमेंट एक ही लाइन में कंप्लीट नहीं होता, बल्कि उसे नेक्स्ट लाइन्स में कैरी ऑन किया जाता है और वो आगे की लाइन्स में जाके कंप्लीट होता है। इस फिगर ऑफ स्पीच को एन्चैम्पमेंट कहते हैं। अच्छा, तो पोएट सबसे पहले कह रहे हैं द सी इज काम टू नाइट। आज की रात समुद्र में बड़ा सन्नाटा है। अभी उन्हें सन्नाटे का ख्याल आया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड,
वो तो ये सोच रहे थे कि आज आज की रात बहुत शांति है, बहुत सेरेनिटी है, बहुत पीस है, काम है समुद्र. बट देन ही नोटिसेस द टाइड इज फुल. you know the moon lies fair upon the straits. वो देखते हैं कि the tide is full. Tide, you understand, the rise and fall of the waves in the sea as a result of the moon and all. So as an impact of the moon, you can say. So the tide is full. Tide full है, that means लहरें बार बार उठ रही हैं फिर गिर रही हैं. द मून लाइज फेयर का मतलब है मून की ब्यूटिफुल रिफ्लेक्शन. फेयर मतलब ब्यूटिफुल रिफ्लेक्शन ऑफ मून इज फॉलिंग अपॉन द स्ट्रेट्स, मीन्स इज फॉलिंग अपॉन दैट वाटर ऑफ द सी. स्ट्रेट ऑफ डोवर, दैट मीन्स इंग्लिश चैनल, उसके ऊपर वो चांद की रोशनी पड़ रही है और चांद के इम्पैक्ट की वजह से टाइड फुल है. और टाइड फुल है तो जाहिर है वो लहरें टकरा रही हैं जाके बार बार बीच पे. और वो लहरें जो साउंड क्रिएट कर रही हैं, उसी ने पोइट को किस चीज़ का रेफरेंस दे दिया, किस चीज़ का हिंट दे दिया, या किसकी याद आ गई? सोफोक्लिस की याद आ गई. ऑन द फ्रेंच कोस्ट, फिर उन्होंने देखा, उनकी नज़र पड़ी फ्रांस, क्योंकि देखो वो कहाँ पर है, इंग्लैंड के एकदम कोस्ट पे हैं, एकदम एंड पे हैं. तो वहाँ से उनको जो फ्रांस का कोस्टल एरिया है वो भी नज़र आ रहा है. तो उसी को वो कह रहे हैं कि जो फ्रेंच का कोस्ट है, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे बहुत लाइट चमक रही है. ग्लीम्स, ग्लीम्स का मतलब है चमकना, बहुत लाइट चमक रही है, लेकिन इज गॉन. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अभी अभी ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ बहुत रोशनी है, और देखो कुछ ही पल में वहाँ की रोशनी चली गई. इसका मतलब अभी अभी कुछ दिन पहले की तो बात है कि हर जगह ऐसा लगता था कि फेथ ऑफ गॉड मौजूद है. Everyone is under the protection of God, under the shelter of God, under the faith of God. और देखो आज वो सब अंधेरे में है. अभी तक ऐसा लगता था जैसे वो एक रोशनी में है, गॉड की रोशनी में, गॉड के फेथ की रोशनी में, और अभी ऐसा लग रहा है कि वो सब अंधेरे में चले गए. तो ये जो लाइट है वो इसी को रेफर कर रही है. लाइट इज रेफरिंग टू फेथ इन गॉड. ये सिंबलाइजेशन है, सिंबलाइज कर रहा है कि देखो ना सिर्फ इंग्लैंड बल्कि फ्रांस भी रोशनी से अंधेरे की तरफ जा रहा है. दैट मीन्स दिस इम्पैक्ट वॉज across the world. The entire world was under this impact. The cliffs of England stand. Cliffs are the large mountain type of rocks at the seashores, generally you can say. सी के किनारे पे होती है और वो लार्ज रॉक्स होती हैं, माउंटेन जैसी, यू कैन से, उन्हीं को क्लिफ्स कहते हैं. तो इंग्लैंड में आप देखोगे कि वहाँ पे जो सी है उसमें देर आर मैनी वाइट रॉक्स, स्टीप रॉक्स. सो वाइट स्टीप रॉक्स आर देयर एंड दे आर कॉल्ड क्लिफ्स. सो क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड. वहाँ पर जो वाइट स्टीप रॉक्स हैं सी में, वो ऐसा लग रहा है ग्लिमर कर रही हैं. ग्लिमर मतलब चमकना, शाइन करना. Embossed, they are large in size and they are glimmering, or they are shining out in the tranquil bay. Out in the tranquil is like peaceful bay. Bay is किनारा. वहाँ पर उस किनारे पर, शोर पर, ये जो स्टीप रॉक्स हैं जिनको क्लिफ्स नाम दिया गया है, ये किनारे पर जैसे लग रहा है कि लार्ज साइज में हैं और बहुत चमक रही हैं. Right. This is what he is saying. That means he is talking about the beauty of nature. He is able to enjoy nature, but he can see that transition from the you can say thoughts of the Romantic era to the thoughts of the Victorian era. So you see, he's saying, come to the window. He's calling his wife or beloved, you can say. Come to the window. Sweet is the night air. आ जाओ विंडो पे, बहुत स्वीट हवा है. You will enjoy it. Only from the long
line of spray where the sea meets the moon blanched land. Listen, you hear the grating roar. Okay, try to understand. उन्होंने कहा अपनी वाइफ से, आ जाओ, तुम एंजॉय करोगी, बहुत अच्छी हवा चल रही है. अगर वैसे तो बहुत अच्छी हवा है, वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा है, एंजॉयबल है, लेकिन अगर दुख की बात करें तो दुख जानते हो सिर्फ कहाँ पर नजर आ रहा है हमें? ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे. बिकॉज इन्होंने किसका रेफरेंस लिया था? सोफोक्लीस का. तो ये कह रहे हैं लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे का मतलब है जो समुद्र में एक फोम क्रिएट होता है, सर्फ क्रिएट होता है, फोम, राइट, लहरों के उठने से. तो जब लहरें उठती हैं तो वो जाके गिरती कहाँ है? लहरें उठती हैं, लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे का मतलब है लहरों का उठना, पानी का उठना, वेव्स का उठना, और वो जा कर के गिरती है कहाँ? बीच पे. इसका मतलब कि किनारे पे, सी शोर पे, ज़मीन पे. तो वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड, जहाँ पर, देखो इस लाइन को इस तरह से लिखा गया है बट इसका सिंपल सा मतलब क्या है? वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड, इसका सिंपल सा मतलब है सी शोर. इस पूरी लाइन का मतलब है बीच या सी शोर. कैसे? आप ही बताओ. लिखा है वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड. मून ब्लांच्ड का मतलब है, ब्लांच का मतलब होता है वाइट, ड्यू टू द, यू कैन से कि वाइट लाइट, ड्यू टू द वाइट लाइट टू गेट टर्न्ड इनटू वाइट और टू गेट टर्न्ड पेल. तो यहाँ पर जो ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन पर चांद का रिफ्लेक्शन है, तो ज़मीन पर चांद की रोशनी पड़ने की वजह से वो ज़मीन वाइट दिख रही है. कौन सी ज़मीन? जहाँ पर समुद्र आकर के ज़मीन से मिल रहा है. तो ये चीज़ कहाँ पे हो रहा है? एकदम बीच पर. इसका मतलब सी शोर की बात हो रही है, सी शोर पर. तो जब लहरें उठती हैं तो वो आकर गिरती कहाँ है? सी शोर पर. Where the sea meets the moon blanched land. इसका मतलब where sea meets the land, and sea meets the land मतलब क्या? सी शोर. लेकिन उसको मून ब्लांच्ड लैंड कहा गया है क्योंकि वो लैंड ऐसी लैंड है जहाँ पर चांद की रोशनी का रिफ्लेक्शन है. तो वो लहरें जब आकर के टकराती है उस जमीन से तो एक साउंड क्रिएट होता है. उसको उन्होंने कहा लिसन, यू हियर द ग्रेटिंग रोर. ग्रेटिंग इज लाइक अनप्लेजेंट साउंड. रोरिंग, एक दहाड़ने वाली आवाज़ सुनाई देती है. ऐसा लगता है जैसे एक बहुत ऑब्नॉक्शियस अनप्लेजेंट सा साउंड सुनाई दिया जब वो लहरें आकर ज़मीन से या सी शोर से टकरा रही हैं. और क्यों वो साउंड इतना अनप्लेजेंट है? क्योंकि वो साउंड ह्यूमन मिजरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है. राइट, ये इमेजरी है, फिगर ऑफ स्पीच है, इमेजरी ऑफ पेबल्स. पेबल्स मतलब छोटे छोटे से पत्थर जो होते हैं वहाँ पर सी बीच पर. विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग. और वो पत्थरों से टकराती हैं क्योंकि ज़मीन पर सी शोर पे छोटे छोटे से पत्थर भी होते हैं. उन्हीं पत्थरों पे, उसी शोर पे आके वो लहरें टकराती हैं और एक आवाज़ क्रिएट होती है जो बहुत अनप्लेजेंट सी आवाज़ है और रोरिंग सी आवाज़ है, क्योंकि वो आवाज़ रिफ्लेक्ट कर रही है ह्यूमन प्रॉब्लम्स को. और उसके बाद वो वेव्स जो हैं वो ड्रॉबैक का मतलब है पीछे चली जाती हैं, वापस से वो पीछे सी में चली जाती हैं. एंड फ्लिंग मतलब थ्रो. एट देयर रिटर्न, फिर वापस आती हैं अप द हाई स्ट्रैंड. स्ट्रैंड मीन्स शोर. तो वो सी से निकलती हैं, राइज होती हैं, आके सी शोर पे टकराती हैं, पेबल्स पे, पत्थरों पे, एक साउंड क्रिएट होता है, फिर वो वापस चली जाती हैं और फिर राइज होती हैं, फिर आकर टकराती हैं सी शोर से. हाई स्ट्रैंड मतलब सी शोर, स्ट्रैंड इज सी शोर. बिगिन एंड सीज मतलब दे बिगिन एंड देन दे स्टॉप एंड देन अगेन बिगिन. तो बिगिन, स्टॉप एंड देन अगेन बिगिन. डोंट यू थिंक एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, उठने का, गिरने का, फिर उठने का, फिर गिरने का. तो एक रिदम बन रहा है with tremulous cadence. Tremulous is like shivering, shaking. जिनके अंदर एक मूवमेंट है, ऐसा लग रहा है वो हिल रही हैं, मूव कर रही हैं, शिवर कर रही हैं, शेक कर रही हैं.
और केडेंस इज अ रिदम और अ पैटर्न, और पैटर्न तो दिख ही रहा है कि उठना फिर गिरना, फिर उठना फिर गिरना। गिरना मतलब इस पर सीशोर पे, फिर वापस जाना सी में, फिर राइज होना, गिर जाना सीशोर पे, फिर वापस जाना सी में। तो ये एक पैटर्न, एक केडेंस फॉलो हो रहा है। एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। और ये जो केडेंस है गिरने और उठने का, ये जो साउंड क्रिएट कर रहा है, ये साउंड एक्चुअली इस बात का सिंबल है कि इटर्नल मीन्स नेवर एंडिंग नोट सैडनेस का शुरू हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये साउंड किस चीज़ को ला रहा है अपने साथ, किस चीज़ को ये एक तरह से किसका मैसेज दे रहा है कि इस दुनिया में क्या आने वाला है। इटर्नल सैडनेस। ऐसा लग रहा है कि इन लहरों का जो 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 इन लहरों की वजह से साउंड क्रिएट हो रहा है, वो साउंड मैसेंजर है इस बात का कि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ इटर्नल सैडनेस। राइट, वो इटर्नल सैडनेस को ला रहा है दुनिया में। इटर्नल मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली सैडनेस। और क्यों कभी ना ख़त्म होने वाली सैडनेस? क्योंकि इस सैडनेस की वजह होगा डिक्लाइन इन फेथ ऑफ गॉड, एंड इट विल रिजल्ट इनटू अ नंबर ऑफ अदर ट्रबल्स इन ह्यूमन रेस, in the race of humanity, in, or mankind, you can say. So this was the first stanza, then we come on to the second stanza. Sophocles long ago heard it on the Aegean. As I told you, that Sophocles was a ancient Greek dramatist who had written a lot of tragedies and is still known for them. बहुत पहले की बात है, सोफोक्लीज ने ये सेम साउंड इटर्नल सैडनेस का या ह्यूमन मिजरी का आप कह सकते हो, उन्होंने सुना था एजियन सी पे। एजियन सी, आई टोल्ड यू, इज़ अ पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी एंड इट इज़ बिटवीन ग्रीस एंड टर्की. And it brought into his mind the turbid ebb and flow. It brought into his mind what? The turbid ebb and flow. Turbid means opaque or dark, something which is not transparent, something through which you cannot see. So opaque or dark ebb and flow of human misery. Ebb and flow means coming and going, like rising then declining. तो ebb and flow तो obviously वो जो waves थी वहाँ पे उनको कहा गया था, क्योंकि waves उठ रही होंगी फिर गिर रही होंगी, उठ रही होंगी गिर रही होंगी, जैसे कि अभी मैथ्यू आर्नल्ड ने अपने लिए बात किया फर्स्ट स्टैंजा में ही, कैसे उन्होंने विटनेस किया था एक केडेंस, एक पैटर्न। तो वही केडेंस, वही पैटर्न एजियन सी में भी था। एब एंड फ्लो जिसको आप कह सकते हो कि उठने वाला फिर गिरने वाला। तो उठने वाला और गिरने वाला वो जो पैटर्न फॉलो हो रहा था सी वेव्स में और जिससे एक साउंड क्रिएट हो रहा था, उन्होंने उसको एक टर्बिड एब एंड फ्लो ह्यूमन मिजरी का मान लिया। टर्बिड का मतलब है डार्क, मतलब जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये एक बहुत थिक और डार्क राइज एंड फॉल है, जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन मिजरी का मैसेंजर है, ह्यूमन मिजरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और टर्बिड का मतलब है ये डार्कनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, विच इज़ गोना बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट। उनको ये चीज़ किस में रिफ्लेक्ट हुई थी? साउंड में, वेव्स के। तो यहाँ पर मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा वी मतलब द पोएट एंड देन दिस पोएट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सोफोक्लीज, राइट। तो सोफोक्लीज को जो चीज़ महसूस हुई थी वही जो है मैथ्यू आर्नल्ड को महसूस हुई। उन्होंने कहा वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट। हमें भी क्या चीज़ सुनाई दे रही है इस साउंड में, वेव्स के साउंड में सेम थॉट सुनाई दे रही। सेम थॉट मतलब फील हो रही है। कौन सी सेम थॉट? दैट दिस साउंड ऑफ द वेव्स hitting the beach is a reflection of human misery, hearing it by this distant northern sea. Although हम इस साउंड को कहाँ पे सुन रहे हैं? मतलब नॉर्दर्न सी पे सुन रहे हैं। नॉर्दर्न सी एक्चुअली रेफर्स टू दैट सी जहाँ पे वो हैं, दैट मीन्स इंग्लिश चैनल की वो बात कर रहे हैं। लेकिन डिस्टेंट वर्ड उन्होंने इसलिए यूज़ किया है
क्योंकि ये नॉर्दर्न सी दूरी पर है किस सी से, एजियन सी से, इसीलिए उन्होंने डिस्टेंट कहा है। वो कहाँ पर है, वो नॉर्दर्न सी पे है, क्योंकि एजियन सी वॉज मोर लाइक अ सदर्न सी। हाउएवर अगर हम नॉर्दर्न सी किसी सी को कहेंगे तो वो ही स्ट्रेट ऑफ डोवर है या फिर इंग्लिश चैनल है, जो कि एटलांटिक ओशन का पार्ट था, तो हम उसको ही कहेंगे, वो ही नॉर्दर्न सी है। तो पोएट तो नॉर्दर्न सी के पास खड़े हैं, मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो नॉर्दर्न सी के पास खड़े हैं, लेकिन उनके नॉर्दर्न सी से एजियन सी काफ़ी दूर है, इसीलिए उन्होंने डिस्टेंट कहा है कि हमारी नॉर्दर्न सी डिस्टेंस पे है एजियन सी से। लेकिन जो साउंड सोफोक्लिस ने एजियन सी पे सुना था, वही सेम साउंड हम इस नॉर्दर्न सी पे सुन पा रहे हैं, जब वेव्स जा करके कोलाइड कर रही हैं सी शोर से, और एक पैटर्न फॉलो हो रहा है राइज एंड फॉल का, और एक अनप्लेजेंट सा साउंड क्रिएट हो रहा है वेव्स के टकराने पर शोर से। देन थर्ड स्टैंजा में पोएट इज सेइंग द सी ऑफ फेथ was once too at the full and round earth's shore lay like the folds of a bright girdle fold। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है द सी ऑफ फेथ, अगेन एक फिगर ऑफ स्पीच है। इस पोएम में एसोनेंस का इस्तेमाल हुआ है, एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। इफ़ यू हैव सीन माई अदर लेक्चर्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ figures of speech. Alliteration I have already told, explained in some other poems, so I'm not going in that detail because this poem is more important to be understood by you. But alliteration has been used, assonance has been used, or as I told you, allusion has been used in the second stanza. अब यहाँ पर जो एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको थोड़ा समझाएंगे। देखो अब तक आपने पढ़ा है एक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, पर्सोनिफिकेशन, जिसमें क्या होता है कि हम किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को या जानवरों को या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, जो एक जिंदा चीज़ नहीं है, जो एक जिंदा इंसान या ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई एक चीज़ है, अगर हम उसे इंसान की क्वालिटी दे देते हैं, पर्सन की क्वालिटी दे देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने उसको पर्सोनिफाई कर दिया, राइट। अगर ये जो है, ये जो सिरप है, इट हैज़ फिनिश्ड, तो हम इसके बजाय कहते हैं इट हैज़ डाइड, यू नो, इट हैज़ डाइड। तो डाइड का मतलब कि हमने इसको जो है फिनिश के सेंस में कहने की बजाय ये कह दिया कि इट हैज़ डाइड। तो डाइड तो एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हमने एक चीज़ को दे दिया, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको क्या किया, इस बॉटल को पर्सोनिफाई कर दिया। तो ये तो हो गया पर्सोनिफिकेशन। लेकिन जब हम किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को या किसी एनिमल को स्पेशली ह्यूमन इमोशन देते हैं या ह्यूमन इमोशन एट्रीब्यूट करते हैं उसके साथ, तो उसे कहते हैं पैथेटिक फैलेसी, पैथेटिक फैलेसी, FALLACY। सो यहाँ पर पैथेटिक फैलेसी यू विल गेट टू सी, और मेटाफर भी आप कह सकते हैं क्योंकि एक डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। तो आप देखोगे द सी ऑफ फेथ, राइट, सी ऑफ फेथ, मतलब इस पोएम में पैथेटिक फैलेसी का इस्तेमाल किया गया है, पहले भी, ऊपर भी, और आगे भी आप देखोगे। आगे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, दैट्स व्हाई आई विल टेल यू अहेड कि किस तरह से कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है इस स्टैंजा में। तो द सी ऑफ फेथ इज़ ऑल्सो अ मेटाफर बिकॉज यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन सी का किया गया है एक तरह से फेथ से, कि सी को जो है, जो वहाँ पर जो समुद्र है जिसको वो विटनेस कर रहे हैं पोएट मैथ्यू आर्नल्ड, उसको उन्होंने फेथ इन गॉड मान लिया है, उस सी को डायरेक्टली कंपेयर कर लिया है फेथ ऑफ गॉड से। Was once too at the full and round earth's shore lay like the folds of a bright girdle fold. Okay, girdle is a cord or a waistband or a belt which is worn around the waist. Okay, it means it covers your entire body when you wear it. So fold is like folded around your waist, that means around your entire body. तो जैसे एक गर्डल को हम जब बांधते हैं अपने वेस्ट में, तो ऐसा लगता है जैसे उसने पूरी बॉडी को चारों तरफ से कवर अप कर लिया है। बिल्कुल वैसे ही चारों तरफ से इस दुनिया को कवर अप किया हुआ था फेथ ऑफ गॉड ने, फेथ
इन गॉड में, सी ऑफ फेथ में, बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलनकली। लेकिन आज हमें सिर्फ दुख सुनाई दे रहा है। लॉन्ग विदड्रॉइंग रोर, हमें विदड्रॉइंग रोर सुनाई दे रहा है। विदड्रॉइंग रोर मीन्स एक रोरिंग साउंड, एक अनप्लेजेंट साउंड, एक क्राइंग, एक शाउटिंग, एक हाउलिंग साउंड सुनाई दे रहा है। वो भी कैसा? विदड्रॉइंग। ऐसा लग रहा है कि ये साउंड फेड होता हुआ आ रहा है। फेड होता हुआ मतलब ये कि ये जो सी ऑफ फेथ जैसे जैसे, या जो फेथ इन गॉड जैसे जैसे रिड्यूस हो रहा है, वैसे वैसे ये जो एक रोरिंग साउंड है वो भी फेड अवे होता जा रहा है, और लोग पूरी तरह से इंडल्ज होते जा रहे हैं सिंस में एंड ऑल। रिट्रीटिंग का मतलब होता है पीछे जाना, विड्रॉ होना, टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये विड्रॉ होते होते कहीं रात के अंधेरे में जैसे जो हवा चलती है, जो नाइट विंड होती है, उसके ब्रेथ में फेड अवे हो जाएगा। रात में, इसका मतलब समझिएगा, डार्कनेस में ये जो सी ऑफ फेथ है, ये जो फेथ ऑफ गॉड है, ये फेड हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा दुनिया से। तब जानते हो क्या बचेगा? डार्कनेस बचेगी, अंधेरा बचेगा, और लोगों की वो जो एक क्राइंग है, जो अभी एक रियलाइजेशन है थोड़ा बहुत, वो भी ख़त्म हो चुका होगा, और वो मर्ज हो जाएगा नाइट विंड में, और सिर्फ अंधेरा बचेगा। डाउन द वास्ट एजेस ड्रीयर, वास्ट एजेस मीन्स लार्ज, किनारे पे, क्योंकि उन्होंने सी ऑफ फेथ से कंपेयर किया, इसको समझिएगा। डाउन द वास्ट एजेस, वास्ट मीन्स लार्ज, एजेस मतलब किनारा, शोर, ड्रीयर मीन्स डल, एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि देखो, लहरें आए, सी ऑफ फेथ सबसे पहले कहा, मतलब मेटाफोरिकली सी को फेथ इन गॉड से कंपेयर किया, और ये कहा कि ऐसा लगता है कि पहले चारों तरफ से ये फेथ इन गॉड ने जो है दुनिया को कवरअप किया हुआ था, लेकिन अब जो है लोग कहीं ना कहीं इस फेथ से हटते जा रहे हैं, और इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे ये फेथ दुनिया से कम होता जा रहा है, विड्रॉ होता जा रहा है। अब विड्रॉ को सी से समझना, क्योंकि इस फेथ को सी से कंपेयर किया गया, तो जो समुद्र है, जो सी है, उसको आप फेथ इन गॉड मान लो। और अकॉर्डिंग टू द पोएट, जो शिंगल्स हैं, शिंगल्स का मतलब होता है जो छोटे छोटे से पत्थर सी बीच पे होते हैं। पेबल्स और शिंगल्स में फ़र्क ये है कि पेबल्स बहुत छोटे छोटे पत्थर होते हैं, और शिंगल्स पेबल्स से थोड़ा सा बड़े पत्थर होते हैं। तो शिंगल्स जो सी बीच पर हैं, जो छोटे छोटे से पत्थर हैं बीच पर, राइट, जब समुद्र अच्छा, तो उन पत्थरों को, उन शिंगल्स को हमें ये कंसीडर करना है कि ये मैनकाइंड है, ये ह्यूमन बींग्स हैं, राइट। और यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के इमोशन से कंपैरिजन है, इसीलिए इसको पैथेटिक फैलेसी कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शिंगल्स को ह्यूमन बींग्स कंसीडर करना है हमें, सो एज टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ अ पैथेटिक फैलेसी, कि इमोशंस को समझने के लिए हमने उनको पर्सोनिफाई किया एक तरह से, या हमने उन ह्यूमन इमोशंस को एट्रीब्यूट किया इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स से, जिनके अंदर जान नहीं है, उनको हमने कंपेयर, मतलब उनको हमने एट्रीब्यूट किया ह्यूमन इमोशंस से। अब कैसे? अगर हमने इन पत्थरों को ह्यूमन बींग्स मान लिया, और ये पत्थर जो कि किनारे पे हैं समुद्र के, तो जब लहरें उठती हैं तो वो आ करके गिरती हैं सी बीच पे, तो कहीं ना कहीं इन पत्थरों को कवर अप कर लेती हैं। लहरें जब गिरती हैं इन शिंगल्स पे, तो ये शिंगल्स कवर हो जाते हैं, किससे? सी से, सी के पानी से, उन वेव से। और सी को क्या कहा गया था? सी ऑफ फेथ। इसका मतलब इन ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक प्रोटेक्शन की लेयर, एक शेल्टर आ गया, किसका? सी ऑफ फेथ का। और ऐसा लग रहा है कि ये ह्यूमन बींग्स अभी किस में है? अंडर द शेल्टर, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ फेथ ऑफ गॉड। लेकिन फिर ये लहरें वापस चली जा रही हैं, और जब ये वापस जा रही हैं एक रोरिंग साउंड के साथ,
तो ऐसा लग रहा है जैसे ये जो शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड है, ये जो मैन काइंड ऑफ द वर्ल्ड है, ये नेकेड हो गए। नेकेड का मतलब है अनकवर्ड हो गए, एक्सपोज्ड टू डेंजर, वल्नरेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ थ्रेट्स इन द वर्ल्ड। ऐसा लग रहा है कि अब ये नेकेड अनकवर्ड हो गए। क्यों? क्योंकि वो लहरें विड्रॉ हो गई, वो वापस चली गई, वो जा कर के एक अंधेरे में फेड हो गई, और अब ये जो मैनकाइंड है ये अनकवर्ड हो गया। अब वो लहरें इस पर नहीं है, सी ऑफ फेथ नहीं है, फेथ इन गॉड नहीं है, जो कि पहले चारों तरफ था, अब कहीं नहीं है। आह लव, लेट अस बी ट्रू। तो लास्ट स्टैंजा में पोएट ने कहा, अब डायरेक्टली एड्रेस करके अपनी वाइफ से कहा कि आह लेट अस बी ट्रू। अच्छा, लेट मी टेल you that this poem is a dramatic monologue, and dramatic monologue is such a poem in which there is a single speaker and there is a silent listener, and that's why the poem is called a dramatic monologue. So here it can be assumed that the single speaker in the poem is none other than the poet Matthew Arnold himself, and the silent listener is his wife. So it is a dramatic monologue because only the poet or the speaker on behalf of the poet will speak throughout the poem alone, right? So single speaker is there, that therefore it is a dramatic monologue. So you will see that wife will not be replying or saying anything, but she will be addressed by the poet and he will say something to her. Ah love, let us be true. इस तरह के सिचुएशन में जब चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि बस प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और कुछ नहीं बचा है, एटलीस्ट हमें एक दूसरे के साथ सच्चे होना होगा। To one another, एक दूसरे के साथ। For means because the world which seems to lie before us like a land of dreams, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है कि ये दुनिया जो हमारे सामने है, राइट, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स, क्योंकि ये दुनिया जो हमारे सामने है, जो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे सपनों की दुनिया है। सो वेरियस, यहाँ पे कितनी वेराइटी है। सो ब्यूटिफुल, यहाँ पर कितनी ब्यूटी है। सो न्यू, यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं जो हमने अब तक विटनेस नहीं की, कितनी नई दुनिया है ये। लेकिन असल में ये सब कुछ सिर्फ हमें लगता है, बट ऐसा है नहीं। ऐसा था तब तक जब तक इस दुनिया के अंदर 19th सेंचुरी का ये रेवोल्यूशन नहीं आया था। लेकिन अब इस रेवोल्यूशन के बाद, फेथ के डिक्लाइन होने के बाद, रिलीजियस बिलीफ्स के ख़त्म होने के बाद, और जैसे कि फेड होता जा रहा है रिलीजियस बिलीफ, अब दिस वर्ल्ड हैथ मीन्स हैज़ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट। अब इस दुनिया में ना तो जॉय मतलब खुशी, ना मोहब्बत, ना रोशनी, कुछ नहीं बचा है। नॉर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड मीन्स सर्टेनिटी और श्योरिटी, ना तो कोई श्योरिटी है, ना तो पीस है, नॉर हेल्प फॉर पेन, और ना ही इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो आपके दर्द में आपका साथ देने आ जाए। क्योंकि अब लोगों के अंदर एक सेल्फिशनेस का एटीट्यूड भी डेवलप होगा, and we are the witness of all of that. So, and we are here as on a darkling plane, और हम मतलब the poet and his wife, as if we are standing on a darkling plane. Darkling plane means a plane, a surface, a land in the darkness. ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे बहुत अंधेरा है। Swept with confused alarms of struggle and flight, और ऐसा लग रहा है जो दुनिया एक ऐसे डायरेक्शन में जा रही है जहाँ पर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, भाग रहे हैं, एक कियोस में, एक कन्फ्यूजन में। उनको नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, ऐसा लग रहा है जहाँ पर इग्नोरेंट आर्मीज मीन्स आर्मीज लड़ रही हैं, लोग लड़ रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वॉर्स के से रिलेटेड भी उन्होंने बात कही कि लोगों में, क्योंकि अब एक अलग इमोशन डेवलप हो रहा है, इमोशन इस तरह का कि अब उनके अंदर पावर की भी चाह आ रही है, अब उनके अंदर पैसे की भी चाह आ रही है, तो जाहिर है कि एक बड़े लेवल पर वो लड़ाई हो रही है। इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, इग्नोरेंट आर्मीज का मतलब है कि जब लोग वॉर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिफरेंट फाइट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं और आर्मीज़ को भेज रहे हैं अपनी, तो वो आर्मीज़ जो कि कुछ नहीं जानती कि रीज़न क्या है इस वॉर का,
वो बिल्कुल इग्नोरेंट हैं, इनोसेंट हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन वो फाइट में इन्वॉल्व हैं, वो वॉर में इन्वॉल्व हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो रात के अंधेरे में लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ डायरेक्शन, लैक ऑफ लाइट की वजह से आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, बट वो जानते नहीं हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि देर इज़ नो नॉलेज, देर इज़ नो लाइट, देर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग। ऐसा लग रहा है कि वो सब इग्नोरेंट हैं, अनअवेयर हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। इग्नोरेंट आर्मीज आपस में क्लैश कर रही हैं। इग्नोरेंट आर्मीज का मतलब दे डू नॉट नो द रीजन बिहाइंड दैट क्लैश, बट दे आर क्लैशिंग विद ईच अदर बाय नाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय नाइट is again a figure of speech which is symbolization. It is symbolizing. By night means they are doing this in the darkness, and darkness is not only referring to the darkness of the night time, but the darkness means they are not enlightened by you can say the blessing of God. They are not enlightened by the blessing of God, and that's why they are in the darkness, and that's why they are, not in the light of knowledge, and they are simply clashing and dying and killing, and there is a lot of destruction taking place all around. And under such a circumstance, what I simply want, Matthew Arnold is saying to his wife, that what I simply want from you is your loyalty and true love towards me, so that we can have at least peace from each other when there is no peace around the world anymore as a result of this 19th century's revolution in the world. So I hope you understood this poem. If you have really understood, then please like the video, share and subscribe to the channel. And I'm really sorry again for the inconvenience that you faced while I was trying to teach you. Thank you so much for watching.